Dear students, we have discussed about the structure that helps in locomotion or the structure which helps in motility of the surrounding fluid or motility of the cell, and that was cilia and flagella. We had understood the ultrastructure of cilia and flagella in the previous class. Now we are going to talk about a similar structure which helps in the process of cell division, which is also present in the spindle fibers which are a part of cell division process. You are going to understand this term spindle fibers in some time or later on in the next chapter. These are proteinaceous filaments which help in separation of the chromosomes at the time of cell division. Even centriole is considered to be a basic structure to cilia and flagella. मतलब ऐसा माना जाता है कि सेंट्रियोल में से ही सीलिया और फ्लैजेला जो है वो डेवलप होते हैं. तो यहाँ पे आपको थोड़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी विद द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. This is also the structure that is made up of microtubules, and microtubules were also found in the structure of cilia and flagella. We had understood that the arrangement of the microtubules in cilia and flagella was 9 plus 2. There were 9 peripheral doublets and there were two such microtubules that were present in the center. All of them were connected by the radial spokes. Okay. So microtubule is a structure made up of protein called tubulin. तो ये हमने आगे सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में बात की. अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. अब स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनटू एन ऑर्गेनल और वो ऑर्गेनल को कहा जाता है सेंट्रोसोम. सो सेंट्रियोल्स आर नॉट फ्रीली प्रेजेंट इंस्टेड. Centrioles are present in a specialized organelle which is known as centrosome. So here first of all we write down what is centrosome. Centrosome is an organelle that possess, or you can say that consists of, two cylindrical structures. These two cylindrical structures are known as centriole. क्या लिखा है यहाँ पे? सेंट्रोसोम जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सेंट्रियोल. These structures, that is centriole, are arranged perpendicular to each other. Perpendicular to each other. मतलब अगर ये है सेंट्रोसोम, here there will be two such cylindrical structures, और ये ऐसे cylindrical structures हैं जिन्हें हम कह सकते हैं that they will be located at right angle to each other. Internally अगर हम इसका structure देखने जाए तो internally they appear as a cartwheel. इंटरनली कैसे दिखेंगे? एज इट इज अ कार्टव्हील. अभी हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम उसको कार्टव्हील के साथ रिलेट कर रहे हैं. कार्टव्हील होता है ना, एक व्हील होता है और पूरे चारों तरफ जो होते हैं वो रेडियल स्पोक्स होते हैं और बीच में एक सेंटर होता है. तो सिमिलरली कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑफ द सेंट्रियोल. तो क्या लिखा है कि जो ऑर्गेनल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनल को कहा जाता है सेंट्रोसोम. What it is called? Centrosome. One centrosome will be having how many centrioles? 2 centrioles. And 2 centrioles will be arranged
perpendicular or you can say right angle to each other. The two centrioles will be arranged at right angle to each other. अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की. तो सेंट्रियोल जो है it consists of 9 peripheral microtubule triplets. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, ये है ट्रिपलेट्स. मतलब देयर विल बी नो डबलेट्स प्रेजेंट ओवर. दो की जगह पे 9 तो है अरेंज, पर ये 9 कैसे होंगे, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स. मतलब सीलिया फ्लैजेला में हमने क्या लिखा था, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लिखते हैं ए और बी, पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए बी सी, ऐसे करके 3 के 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होंगे. मतलब 9 पूरे माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. एंड इन the center there is presence of proteinaceous hub. मतलब सेंटर में यहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है. इंस्टेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंटर जो है उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, अ मास ऑफ प्रोटीन्स इज प्रेजेंट, जिसे कहते हैं प्रोटीनेशियस हब. तो 9 जो है वो होंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स और सेंटर में है अ प्रोटीनेशियस हब. एंड दिस प्रोटीनेशियस हब विल बी कनेक्टेड टू द microtubules at periphery by the structure that is called radial spokes. So जैसे सीलिया फ्लैजेला में थे रेडियल स्पोक्स, क्या कनेक्ट करते हैं, सेंट्रल शीथ को कनेक्ट करते हैं विद द माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स. सेम वे यहाँ पे प्रोटीनेशियस हब विल बी कनेक्टेड to the microtubule triplets with the help of the radial spokes. So यहाँ पे भी वो कनेक्शन तो है ही. This arrangement is called 9+0 arrangement. क्या कहा जाएगा इसे, 9+0. 9 क्यों, क्योंकि पेरिफेरल 9 होंगे, और 0 क्यों, क्योंकि बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है. इंस्टेड बीच में सिर्फ क्या है, मास ऑफ प्रोटीन, जिसे कहेंगे हम प्रोटीनेशियस हब. तो 9+0 याद रखना है सेंट्रियोल के लिए, और 9+2 याद रखना है सीलिया और फ्लैजेला के लिए. तो यहां तक आपको समझ में आया होगा. अब हम मेंशन कर देते हैं दैट सेंट्रियोल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ formation of cilia and flagella बेसल बॉडी. मतलब सीलिया और फ्लैजेला का जो बेस होगा, जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सिर्फ डेवलप हुए हैं, तो सीलिया और फ्लैजेला का बेस जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द सेंट्रियोल इटसेल्फ. इट ऑल्सो हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग cell division. So formation of the spindle fibers जो फॉर्म होते हैं, जो अभी मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स को अटैच होते हैं ताकि वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सके. तो ये स्पिंडल फाइबर जो है वो सेल डिवीजन के वक्त हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे भी सेंट्रियोल का रोल है. सो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस. एक तो फंक्शन है कि इट विल फॉर्म
basal body of cilia and flagella, and second function of it will be the formation of the spindle fibers during the process of cell division. तो यहाँ पे आपको याद रखना है सेंट्रोजोम, उसके अंदर याद रखना है दो सिलिंड्रिकली अरेंज परपेंडिकुलरली अरेंज सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स जो होंगे ये सेंट्रियोल्स के अंदर क्या होगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स एंड प्रोटीनिशियस हब इन सेंटर. दिस विल बी कनेक्टेड बाय द रेडियल स्पोक्स. जो अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगी तो आप उस डायग्राम में सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. So as we said that centrosome is the organelle which has the presence of 2 centrioles. तो centrioles जो होंगी वो हमेशा ऐसे पैर में ही रहेंगी, that is they will be arranged at right angle to each other. हमने देखा that centriole is having a cartwheel like structure. तो cartwheel like structure उसे क्यों कहते हैं वो हम यहाँ पे एक बार सिर्फ डायग्राम से देख लेते हैं. Students, diagram is not given in your textbook. This diagram is for making you understand whatever points we have mentioned before. आगे हमने कहा that centriole जो है उसमें क्या present होगा, 9 peripheral microtubules के triplets present होंगे, and all these are interconnected to the adjacent microtubules. They are even connected to the central proteinaceous hub. क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, उसकी जगह पे सिर्फ क्या है, अ मास ऑफ प्रोटीन्स ऐसे प्रेजेंट है. इसीलिए ये जो सराउंडिंग में जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे विल बी कनेक्टेड इवन टू द सेंट्रल प्रोटीनिशियस हब. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इन द डायग्राम. दिस डायग्राम इज शोइंग दैट देयर इज अ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं तीनों को, ये क्या है, These are, इसे लेबल कर देते हैं ऐसे ABC. तो ये क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होंगे. देखा था आपने सीलिया और फ्लैजेला में हमने डबलेट्स बनाए थे, जबकि यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ट्रिपलेट्स बनाया है. मोर ओवर यहाँ पे सराउंडिंग आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं देखोगे जो सीलिया फ्लैजेला में प्रेजेंट होती है. तो ये हम लेबल कर देंगे दैट दीज आर peripheral triplets. What are these? Peripheral triplets. And what are they actually? They are triplets made up of microtubules. फिर आप देख सकते हो कि सेंटर में हमने बनाया है a mass of proteins, जिसे हम लिख देंगे proteinaceous hub. Proteinaceous hub. हब मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स इकट्ठा हुए हैं उसे हब कहते हैं, राइट. इट इज पैक्ड विथ प्रोटीन, सो इसे कहेंगे प्रोटीनेशियस हब. ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, दीज विल बी नोन एज अ रेडियल स्पोक्स. ओके, रेडियल स्पोक्स होंगे. और ये जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, जो C है वो कनेक्टेड किससे होगा, A. C will be connected to A. वैसे जो आप देख रहे हो वो है adjacent protein fibers जो कनेक्ट करेंगे one microtubule to another microtubule. Another thing is that the pink color structures which you can see in the surrounding are known as pericentriolar satellites. पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स. इनका और एक पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स, पेरी मतलब पेरीफेरल, सेंट्रियोलर मतलब सेंट्रियोल के पेरीफेरी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनिशियस मासेस एंड दीज आर नोन एज पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स. इनका और एक वर्ड है जिसे कहते हैं मेज्यूल्स. पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स आर आल्सो नोन एज मेज्यूल्स. तो यहाँ पे आपको याद कितनी चीजें रखनी है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स कितने होने चाहिए, 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, सेंट्रल प्रोटीनिशियस हब, कनेक्टेड आर द रेडियल स्पोक्स. These are the adjacent linkers which are linking the neighboring microtubules, and these are the peripheral, that is pericentriolar satellites or mesules.
तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट most important and mainly considered as the last organelle, but the most important organelle of the cell, and it is termed as the nucleus. तो अब हम आगे बात कर रहे हैं ऑफ द नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियस. तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा दैट न्यूक्लियस जो है वो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं ब्रेन, जो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की हर एक एक्टिविटी, वेदर इट इज रेस्पिरेशन, वेदर इट इज अब्जॉर्प्शन, वेदर इट इज सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, और वेदर इट इज मेकिंग ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, or any metabolic activity occurring in the cell, these all activities are controlled by the organelle known as nucleus. Why nucleus? Because nucleus is having the presence of the genetic material. Nucleus के अंदर present होता है DNA, and DNA is known to control all the activities of the whole cell and thereby control the activity of the body. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? जब सेल्यूले का टर्म आया था, जो दिया था रॉबर्ट हुक ने, तो उसने ऐसा कहा था कि सेल के अंदर जो है वो एम्प्टी स्पेसेस है. बट लेटर ऑन रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831 ये कंक्लूड किया था दैट विद इन द सेल there is no empty space. Instead, the cell has inside a presence of a dense material within it, and this dense region was known as nucleus. तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो की गई है रॉबर्ट ब्राउन ने. But later on, the nucleus was stained by a basic dye. मतलब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए कि न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली है क्या, ये सब तो हमें अब पता है कि उसके अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर आरएनए होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमें अब पता है. उस टाइम पे पता नहीं था. इसीलिए न्यूक्लियस एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये देखने के लिए इट वाज स्टेन्ड बाय अ बेसिक डाई. एंड हु डिड दिस? एंड डन बाय, दिस वाज done by Fleming. This was done by the researcher called Fleming, and he termed it as chromatin. The term he gave was chromatin. Chromatin means nucleoprotein. मतलब उसने ऐसा कहा कि क्रोमेटिन जो है, मतलब उसने ऐसा कहा कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन प्रेजेंट है. और ये जो क्रोमेटिन है वो एक्चुअली क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स प्लस द प्रोटीन. मैं यहाँ पे न्यूक्लिक ही लिख देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन. मतलब डीएनए हो या आरएनए, डीएनए कभी भी अकेला होता नहीं है. डीएनए इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स, and therefore DNA is what? It is the nucleic acid and it is associated with protein. This combination is known as the chromatin. मतलब न्यूक्लियस सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने, पर उसे स्टेन किया बेसिक डाई से और फिर ऑब्जर्व किया और टर्म दिया क्रोमेटिन. ये किसने किया है? दिस इज द वर्क डन बाय द रिसर्चर कॉल्ड फ्लेमिंग. आगे बढ़ते हैं. That in an interphase nucleus, in an interphase nucleus, in an interphase nucleus, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ interphase nucleus मतलब in a non dividing stage.
इन अ नॉन डिवाइडिंग स्टेज। क्या लिखा है मैंने, एक इंटरफेज न्यूक्लियस जो है, इंटरफेज क्या होता है कि सेल जो होता है उसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है डिवाइडिंग फेज और एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को क्या कहा जाता है, इंटरफेज। ये फेज के वक्त सेल और न्यूक्लियस खुद को प्रिपेयर करते हैं फॉर द डिवीजन। ह्यूमन सेल को, एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, पर 24 आवर्स में डिवीजन का आवर मतलब द मेन टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिवाइडिंग इज हार्डली 1 आवर। रेस्ट ऑफ 23 आवर्स आर ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट डिवाइडिंग। क्या प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जैसे कि ऑर्गेनल्स को डबल करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, जेनेटिक मटेरियल को डबल करना पड़ेगा, तो ही तो वो दो सेल्स को दे पाएगा। तो ये जो प्रिपरेशन का काम है वो प्रिपरेशन के फेज को कहते हैं इंटरफेज, और इसी को कह सकते हैं हम नॉन डिवाइडिंग स्टेज। मतलब नॉन डिवाइडिंग स्टेज के बाद क्या आएगा, डिवाइडिंग स्टेज, जिसमें सेल डिवाइड होके दो नए सेल्स बनेंगे। तो ये जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा तो कौन से कंपोनेंट्स दिखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑब्जर्व्ड, द कंपोनेंट्स विच आर ऑब्जर्व्ड, कौन से कंपोनेंट्स दिखेंगे। सो द फर्स्ट इज द न्यूक्लियर एनवलप। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, फर्स्टली न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हम बात करते हैं, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो। इसके बाद आ जाएगा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है वो मटेरियल पहले किस क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन के साथ और एक चीज जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। सो व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट आर मेनली प्रेजेंट। सबसे बाहर की बाउंड्री आ जाएगी, वो होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर पूरी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें हैं, एक क्या आएगा, क्रोमैटिन जो जेनेटिक मटेरियल है प्लस प्रोटीन्स है, और लास्टली आ जाएगा उसमें न्यूक्लियोलस। तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। तो न्यूक्लियर एनवलप it is a double membrane bound structure। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, दो मेम्ब्रेन्स है, मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस with ER and may be containing ribosomes, right? तो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, पर इसके साथ कनेक्टेड क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने डायग्राम में बनाया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हमने ये पॉइंट भी लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां से कनेक्टेड होगा वो कौन सी मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, राइट। और वो आउटर मेम्ब्रेन पे ऐसा भी हो सकता है कि वो स्मूथ हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन पे क्या अटैच्ड हो, राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स ईआर पे अटैच थे वैसे ही थोड़े बहुत राइबोसोम्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। फिर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन will be the one which is located beneath the outer membrane and this is going to be continuous, okay। तो outer membrane ER के साथ connected होगा but inner membrane will not be connected to anything, and the space between them is known as
न्यूक्लियर स्पेस। किसके बीच की स्पेस की बात कर रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। एंड द डायमेंशन इज अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो जगह होगी उस प्लेस को क्या कहा जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है उसका डायमेंशन कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर। तो न्यूक्लियस में अभी कितने पॉइंट्स हमने कहा कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने, उसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। फिर आता है फ्लेमिंग, जिसने न्यूक्लियस को स्टेन किया है विद अ बेसिक डाई, और उसने टर्म दिया था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन। अगर हम नॉन डिवाइडिंग सेल में देखने जाए तो नॉन डिवाइडिंग सेल, इंटरफेस सेल के वक्त न्यूक्लियस में कौन से कंपोनेंट्स दिखते हैं? तो सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवलप, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवलप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, outer membrane continue with the endoplasmic reticulum, inner membrane will be a smooth layer। outer और inner के बीच में जो space है उसे कहेंगे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और उसका डायमीटर है 10 to 50 नैनोमीटर। ऐसा भी होता है that ये जो मेम्ब्रेन है उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे there will be presence of nuclear pores। न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म विद द साइटोप्लाज्म। तो अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो सकता है, पर उस जगह पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी? जैसे कि ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा अ न्यूक्लियर पोर। सी, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों फ्यूज होते हैं और यहाँ पे क्या आता है? न्यूक्लियर पोर। अगेन दिस आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन विल कंटिन्यू, अगेन देयर विल बी अ न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एसेंशियल आरएनए या प्रोटीन्स बने हैं उन्हें अगर साइटोप्लाज्म में भेजना हो तो दे आर सेंट थ्रू व्हाट? थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। तो आगे हमें अभी न्यूक्लियस के बारे में काफी कुछ डिस्कस करना है। वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।